Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 12, chapter number 6, Stability. Stability is the most important parameter of the design of control systems. Without stability, the transient response and steady state error, these analyses are more useless without stability. So first check of the design in the control system is the stability. Stability is the most important system specification. If a system is unstable, transient response and steady state errors are moot points. So a system is represented in terms of force response and natural response. So this is the output. This output is existing of the forced response and the natural response. As we know that whenever the forced response is dominant over the natural response, then the system would be stable. Now, how to find the dominancy of the forced response? The natural response must decay with time. As time goes to infinity, the natural response must go to 0. In that case, the system would be called as stable system. But on the other hand, if the natural response is rising, that is growing exponential, that is going approaches to infinity as time goes to infinity, then the system would be called as unstable system. So there is no need for the analysis of transient response and steady state error. Now we are going to make some definitions of depending upon the natural response of the system of stability. A linear time invariant system is stable if the natural response approaches 0 as time approaches infinity. So as I have told that the natural response must be 0 as time goes to infinity for the stability of the system. The second definition of the unstable system is that a linear time invariant system is unstable if the natural response grows without bound as time approaches infinity. So by this definition, the natural response is not approaching 0 as time is going to infinity. So the whole system will be having a natural response and the forced response will be negligible, so the system will be called as unstable system. Third definition, a linear time invariant system is marginally stable if the natural response neither decays nor grows but remains constant or oscillates as time approaches infinity. तो यहाँ पे जो नेचुरल रिस्पांस है वो कांस्टेंट रहती है, फोर्स रिस्पांस भी होगी और नेचुरल रिस्पांस भी होगी, बट नेचुरल रिस्पांस रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया था अनडैम्प्ड सिस्टम का. जिस तरह चैप्टर नंबर 4 में अनडैम्प्ड सिस्टम पढ़ा था, तो वो क्या है, दैट इज़ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, जहाँ पे नेचुरल रिस्पांस कांस्टेंट हो, बढ़ता भी ना हो और घटता भी ना हो. एक और डिफिनीशन है स्टेबल सिस्टम की, अ सिस्टम इज स्टेबल इफ एवरी बाउंडेड इनपुट यील्ड्स अ बाउंडेड आउटपुट. नाउ व्हाट इज बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट? बाउंडेड आउटपुट का मतलब ये है कि आउटपुट पे एक ख़ास वैल्यू आपके पास रह जाती है, विच इज़ द स्टेडी स्टेट वैल्यू और द फोर्स्ड रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. What is mean by bounded input? Bounded input means कि जिस तरह एक सिस्टम के लिए अलग इनपुट होगा, एक स्पेसिफिक इनपुट होगा स्पेसिफिक सिस्टम के लिए, ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे
कि अगर आपने किसी कांस्टेंट पोजीशन को ट्रेस करना है सो यू वुड बी यूजिंग अ स्टेप इनपुट। जो स्टेप फंक्शन है आपने एज ए इनपुट वो इस्तेमाल करना है। अगर आपने किसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ट्रेस करना है तो आपने रैंप फंक्शन को एज ए इनपुट इस्तेमाल करना है। सो दीज आर द बाउंडेड इनपुट्स मींस कि आपने स्पेसिफिक सिस्टम के लिए स्पेसिफिक इनपुट देना होगा। अगर आप कांस्टेंट पोजीशन के लिए कोई और स्टेप इनपुट के अलावा कोई और इनपुट देंगे सो मे बी द आउटपुट इज़ अनबाउंडेड। उसका आउटपुट जो नेचुरल रिस्पांस होगा वो मे बी ग्रोइंग होगा, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, सो दैट सिस्टम वुड बी कॉल्ड अनस्टेबल। तो मतलब ये हुआ कि आपने बाउंडेड इनपुट देना है टू गेट द बाउंडेड आउटपुट। सो इन दैट केस द सिस्टम वुड बी स्टेबल। If bounded input yields an unbounded output, so that system will be termed as unstable system. तो इसको BIBO यानी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट डिफिनीशन ऑफ द सिस्टम कहते हैं। अब चलते हैं फॉर स्टेबिलिटी चेक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस सिस्टम के लिए कि ये एक पोल है, ये सेकंड पोल है, दिस इज़ द थर्ड पोल ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम का जो रिस्पांस आपको नज़र आ रहा है वो ये है। यहाँ से यहाँ तक नेचुरल रिस्पांस एग्जिस्ट कर रहा है, बट बियॉन्ड दिस पॉइंट नेचुरल रिस्पांस 0 हो रहा है और सिर्फ फर्स्ट रिस्पांस रहता है। सो दिस इज़ स्टेबल सिस्टम। अच्छा, ये बात याद रखिए कि यहाँ पे जो 3 पोल्स हैं ये तीनों लेफ्ट साइड के ऊपर है ऑफ दी एस प्लेन। ये एस प्लेन है, दिस इज एस प्लेन, दिस इज रियल एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय जे ओमेगा। On this vertical axis, this is left half plane, this is called left half plane। ये लेफ्ट साइड के ऊपर है तो इसको कहते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। इस वर्टिकल एक्सिस के राइट साइड पे कहते हैं राइट हाफ प्लेन RHP। सो क्या हुआ, ये वर्टिकल लाइन है, इसके लेफ्ट पे लेफ्ट हाफ प्लेन और इसके राइट पे राइट हाफ प्लेन। तो ये लेफ्ट हाफ प्लेन हो गई एंड दिस इज राइट हाफ प्लेन। तो आगे हम जो क्राइटेरिया पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के लिए उसमें ये मैटर करता है कि पुल लोकेशंस लेफ्ट हाफ प्लेन में है या राइट हाफ प्लेन में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में है जबकि 2 पोल राइट हाफ प्लेन में है। जब पोल्स राइट हाफ प्लेन के ऊपर आते हैं तो जो एक नेचुरल रिस्पांस है दैट बिकम्स ग्रोइंग राइजिंग एक्सपोनेंशियल, इसको कहते हैं। जो नेचुरल रिस्पांस होगा वो ग्रोइंग होगा, बढ़ता जाएगा टाइम के साथ एंड नेवर अप्रोचेस टू 0। तो इस टाइप के सिस्टम को हम अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं। तो अनस्टेबल सिस्टम के लिए क्या कंडीशन है कि अगर पोल्स ऑफ द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन राइट साइड के ऊपर आ जाए तो सिस्टम वुड बी टर्म्ड एज अनस्टेबल सिस्टम। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है जिसको कहते हैं रोथ-हार्विट्ज क्राइटेरिया। We can find the number of poles in each section of the S-plane, that is left half plane and right half plane, but we cannot find their coordinates। रोथ-हार्विट्ज क्राइटेरिया में क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि हमने पुल लोकेशंस को फाइंड करना होगा कि पुल लोकेशंस एस प्लेन के अंदर राइट हाफ प्लेन के अंदर है या लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यूज हमने फाइंड नहीं करनी है। तो रोथ-हार्विट्ज क्राइटेरिया के लिए 2 प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस में ये है कि जेनरेट द डेटा टेबल कॉल्ड रोथ टेबल। सबसे पहले रोथ टेबल जेनरेट करनी है
Then interpret the root table to tell how many closed loop system poles are in the left half plane and the right half plane are on the j omega axis. तो जो पॉसिबल कम्बिनेशन है ऑफ द पोल्स वो यूँ हो सकती है कि या तो ये लेफ़्ट हाफ प्लेन के अंदर होंगे या राइट हाफ प्लेन के अंदर होंगे या थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है जो ओमेगा एक्सिस के ऊपर होंगे। तो ये तीन केसेस हैं, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं पुल लोकेशंस के हवाले से। तो ये हम फाइंड करेंगे यूजिंग दी रुथ-हार्विस क्राइटेरिया। तो सबसे पहले रुथ टेबल बनानी है। तो रुथ टेबल के बाद इसको इंटरप्रेट करना है कि पुल लोकेशंस कहाँ पर हैं। सो जनरेटिंग अ बेसिक रुथ टेबल। Let us suppose we have a closed loop transfer function like this. This is numerator जो स्टेबिलिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जस्ट इस क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के डिनोमिनेटर को हमने कंसीडर करना है। पोल्स आर रिलेटेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो जस्ट हमने डिनोमिनेटर को ही लेना होगा फॉर पुल लोकेशंस। तो हाउ टू जनरेट द टेबल। टेबल को जनरेट करने के लिए वी वुड बी फोकसिंग ऑन द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज टर्म्स। तो एस के जो कोफिशिएंट्स है उनके ऊपर हमने फोकस करना है। यहाँ स्टार्ट होता है एस टू द पावर 4 से। तो दिस इज़ फर्स्ट कोफिशिएंट, दिस इज़ सेकंड कोफिशिएंट, ये थर्ड है, ये फोर्थ है एंड दिस इज़ कांस्टेंट फिफ्थ विच इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे एस की पावर 0 है। अब इन पांचों जो कोफिशिएंट्स है इनको कैसे लिखना होगा टेबल के अंदर। एक टेबल बनानी है जिसका पहला रो जो होगा, जो हायर पावर है वहाँ से स्टार्ट लेंगे। सो पहले रो में पहला एलिमेंट ये होगा, दूसरा एलिमेंट ये होगा और तीसरा एलिमेंट ये होगा। मतलब ये हुआ कि अगर S4 से स्टार्ट लेती है तो पहले रो को बनाने के लिए A4 लिखेंगे, A2 लिखेंगे और A0 लिखेंगे, यानी अल्टरनेट कोफिशिएंट्स हमने लिखने हैं, एक को छोड़ के दूसरा लिखना होगा। तो चलते हैं टेबल की तरफ लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे A4 है, A2 है और A0 है। जो S पावर 3 है और S पावर 1 है उनके कोफिशिएंट्स हमने जोड़े हैं, अल्टरनेट कोफिशिएंट्स को लिखना होगा। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो। सेकेंड रो में ये करना होगा कि जो हमने जोड़े थे इन डिसेंडिंग आर्डर वो कोफिशिएंट्स हमने यहाँ पे 0 होगा, दिस इज़ A1 एंड दिस इज़ A3। तो देखते हैं कि यहाँ पे A3 है, दिस इज़ A1 एंड दिस इज़ 0। तो जस्ट ये 2 रोज हमने बनानी है और अब टेबल समझा रहा हूँ। टेबल को समझने के लिए जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ दिस टेबल क्या करना होगा, जो हायर पावर है एस की जो हायर पावर है वहाँ से स्टार्ट लेना है, फिर इसको इस तरह डिसेंडिंग आर्डर के अंदर लिखना होगा। S पावर 4, S पावर 3, S पावर 2, S पावर 1, S पावर 0। पहले 2 रोज जैसा कि मैंने बताया उसी तरह करने हैं। बाकी जो बच जाते हैं S2, S1 और S0, इन तीनों के लिए भी हमने रोज़ बनानी है। तो उन रोज़ को बनाने के लिए चंद रोल हैं। तो A स्क्वायर की रो को बनाने के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किस तरह आएगा। वी हैव टू कंसीडर दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें कंसीडर करना है विच इज़ A4, A3, A2, A1 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा।
तो दिस इज़ A4 A2 A3 A1 और इसी का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। फिर क्या करना होगा, इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स हमने लिया, इसका डिटर्मिनेंट लिया और इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ डिवाइड दिस बाय दिस फर्स्ट एलिमेंट जस्ट अबव, जो ए स्क्वायर के ऊपर जस्ट रो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा विच इज़ A3 ओवर हेयर, तो इसके ऊपर हमने इसको डिवाइड करना है। नाउ ये ए स्क्वायर की जो रो है ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। दोबारा देख लें, ए स्क्वायर के ऊपर इस ए स्क्वायर के ऊपर एक मैट्रिक्स कंसीडर करनी है विच वुड बी दिस। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है और डिटर्मिनेंट को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है और जस्ट अबव दिस जो एलिमेंट है विच इज़ A3 इसके ऊपर इसको डिवाइड करना है। सो लेट सपोज वी विल बी गेटिंग B1। यहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है, B1 वैल्यू आ रही है। अब सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ए स्क्वायर रो, जो ए स्क्वायर है ये, इसके लिए हमने रो बनानी, इसका फर्स्ट एलिमेंट हमने फाइंड कर दिया। अब सेकंड एलिमेंट बनाना है, तो सेकंड एलिमेंट बनाने के लिए एक कॉलम ये ले और दूसरा ये ले ले, ये इस मैट्रिक्स को कंसीडर करना है। चूँकि फर्स्ट के लिए हमने ये रो ली थी तो ये कॉलम लिया था, तो ये कॉलम सेकंड के लिए कंसीडर नहीं करना है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में A4 A3 है विच इज़ ओवर हेयर और थर्ड में A0 एंड 0 है तो विच इज़ ओवर हेयर। इसको भी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है और ए स्क्वायर रो में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इसी ही A3 के ऊपर इसको डिवाइड करना है, तो इसी को भी A3 के ऊपर डिवाइड कर दिया गया है। सो लेट अस सपोज वी विल बी गेटिंग some constant which is B2। now थर्ड के ऊपर आते हैं, यहाँ पे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो जो फोर्थ कॉलम है इसको हम 0 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम ये होगा एंड सेकंड कॉलम वुड बी दिस। इसके अंदर सेकंड हमने पुट किया था सेकंड कॉलम, इसके अंदर हमने थर्ड कॉलम को पुट किया ये सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे हमने फोर्थ कॉलम को पुट करना होगा एज ए सेकंड कॉलम और जो फर्स्ट कॉलम होगा सब डिटर्मिनेंट्स का वो यही पहला वाला होगा। इसी तरह इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो एस क्यूब में फर्स्ट एलिमेंट है सबको इसी के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये डिवीज़न कर दे विल बी गेटिंग 0। तो इस तरह ये ए स्क्वायर की रो हमने फाइंड कर दी है। इसके एलिमेंट्स हमारे पास आ गए विच आर B1 B2 एंड 0। नाउ S1 के लिए S1 का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट कॉलम इसका A3B1 होगा और सेकेंड कॉलम इसका A1B2 होगा। सो दैट इज़ A3B1 एंड A1B2। तो ये इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और S1 के ऊपर जस्ट क्या है, दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर इज़ B1। तो जस्ट अबव द रो S1 के ऊपर हम एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हैं S1 रो के लिए। तो S1 रो के लिए जस्ट अबव दिस इस मैट्रिक्स को कंसीडर करना है। फर्स्ट कॉलम ये होगा और सेकंड कॉलम ये। अब इसके ऊपर जो एलिमेंट होगा विच इज़ B1 के ऊपर सबको
डिवाइड करना है। सो लेट अस सपोज वी आर गेटिंग C1। नाउ चलते हैं नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट के लिए जो पहला कॉलम है वो सब के लिए कंसीडर करना होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने इसको लिखा था। तो A3B1 ये सब में कॉमन होगा जो सेकेंड कॉलम होगा, चूँकि ये कॉलम हमने कंसीडर किया था यहाँ पर। अब कौन सा रहता है? 0 0 रहता है, तो 0 0 हम यहाँ पे लिखेंगे और इसी को भी B1 के ऊपर डिवाइड करेंगे और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब चूँकि ये 0 0 हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है, तो इसके लिए भी फर्स्ट जो कॉलम होगा दैट इज़ A3B1 होगा। और चूँकि यहाँ पे 0 0 एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ से 0 0 उठा के यहाँ पे पुट करते हैं और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी B1 के ऊपर डिवाइड करेंगे, वी विल बी गेटिंग 0। तो S1 की रो जो है वो भी हमने फाइंड कर दी। अब आते हैं S3 की रो की तरफ। नाउ सॉरी S0 की रो की तरफ। तो इससे बहु जो कॉलम है दैट इज़ B1 C1 और जो फर्स्ट कॉलम होगा वो सब के लिए ये कॉमन होगा B1 C1। नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कॉलम के लिए ये कंसीडर करके ये यहाँ पे पुट करेंगे और सबको किस पे डिवाइड करना है? जस्ट अबाउट दिस। जो फर्स्ट एलिमेंट है S1 रो में सबको C1 पे डिवाइड करेंगे। नाउ लेट अस सपोज दिस इज D1। अगेन फर्स्ट कॉलम जो होगा दैट वुड बी B1 एंड C1। सेकंड कॉलम के लिए इसको कंसीडर करना होगा, यहाँ पे ये पुट करेंगे और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें सबको C1 पे डिवाइड करेंगे, तो विल बी गेटिंग 0। इसी तरह जो B1 C1 है वो यहाँ फर्स्ट कॉलम कंसीडर होगा, चूँकि यहाँ पे 0 0 है तो इस 0 0 को यहाँ पे पुट करके विल बी गेटिंग 0। तो इस तरह एक कंप्लीट रो टेबल हमारे पास आ जाएगी, विच इज़ A1 A4 A2 and A0 A3 A1 and 0 B1 B2 0 C1 0 0 D1 and 0 0। तो इस तरह हमने एक रो टेबल बनाई है यूजिंग द फर्स्ट टू रोज, फिर उसी से जाके बाकी एलिमेंट्स बनते हैं। तो चलते हैं एग्ज़ाम्पल 6.1 की तरफ। इन एग्ज़ाम्पल 6.1 टेलिंग दैट मेक द रूट टेबल फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर 6.4। तो 6.4 के अंदर ये एक क्लोज लूप या फीडबैक सिस्टम है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, जिसमें G(s) ये है, H(s) 1 होगा यहाँ पर, दिस इज़ 1। तो इसी को अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करके लिखें सो जो T(s) होगा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, वो कुछ यो बनेगा। तो इसको मैंने पेज के ऊपर हल किया, वहाँ पे चलते हैं। सो एग्जाम्पल 6.1 दिस इज़ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें G(s) ये है, H(s) 1 है एंड दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक। तो इसको कहते हैं दिस इज़ ए यूनिटी H(s) इज इक्वल टू 1 एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हैविंग G(s) इज इक्वल टू दिस विच इज़ लाइक दिस एंड द क्लोज लूप फॉर क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को फाइंड करने के लिए चैप्टर नंबर 5 में जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन थी वहाँ पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि फॉर फीडबैक सिस्टम्स T(s) यानी क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो, G(s) डिवाइडेड बाई 1 प्लस G(s) इंटू H(s). दिस इज़ फॉर अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम।
तो जी ऑफ एस की वैल्यू पुट करें, वो ये है 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू मल्टीप्लाई बाई 1। तो दिस इज इक्वल टू डी नोमरेटर डिवाइडेड बाई डी नोमरेटर क्या होगी, ये होगी, एंड डिनोमिनेटर वुड बी दिस। नाउ डिनोमिनेटर ये है, so we can ns by ds we can write this like ns into 1 over ds। तो ds इसी का अगर हम एलसीएम ले लें ये होगा, सो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे दिस प्लस 1000। तो इसी वैल्यू को अगर हम पुट कर दें ns by ds में, तो टी ऑफ एस हमारे पास ये बन जाएगी आफ्टर दिस कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशन खुद देखें। तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन हमारे पास जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होगी वो ये 1000 डिवाइड बाई एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 5 प्लस 1000। तो इसी को लिखने के लिए एक आसान फार्मूला है, वो क्या है, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा कि अगर जी ऑफ एस आपके पास के डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस ए है, तो टी ऑफ एस यानी क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगी, उसी जी ऑफ एस को लिखे के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस ए लिखे, जस्ट ये जो के है वो यहाँ पे ऐड कर दें। तो यहाँ पे यहाँ तक दिस इज़ जी ऑफ एस, के की जगह यहाँ 1000 है तो 1000 यहाँ ऐड कर दे, दिस बिकम जस्ट क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। अब क्या करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और 1000 ऐड कर दे, विल बी गेटिंग एस क्यूब प्लस 10 स्क्वायर प्लस 31 एस प्लस 1030। तो नाउ दिस इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। अब इस डिनोमिनेटर से हमने रुट टेबल बनानी है। तो रुट टेबल बनाने के लिए अभी यहाँ पे जो हायर पावर है दैट इज़ एस क्यूब, तो एस क्यूब से स्टार्ट लेना है और फिर डिसेंडिंग आर्डर में इस तरह एस क्यूब, फिर एस स्क्वायर, फिर S1 और लास्ट में क्या आएगा, S0। तो ये एक कॉलम बन जाएगी विच आर दी पावर्स ऑफ S। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, तो वैल्यूज़ को पुट करने के लिए डिनोमिनेटर के ऊपर चलते हैं। तो एस क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, दिस इज़ 1, फिर एक को छोड़ दें, ए स्क्वायर को छोड़ दें, एस की कोफिशिएंट 31 है विच इज़ ओवर हेयर, फिर इसको छोड़ दें, यहाँ पे 0 होगा, सो विल बी हैविंग 0 ओवर हेयर। अब सेकेंड ए स्क्वायर की रो बनाने के लिए 10 को ले लें विच इज़ ओवर हेयर, तो यहाँ से 10, फिर जो रह गया था यहाँ से ये, फिर यहाँ पे 0 होगा, सो 0 ओवर हेयर। तो फर्स्ट 2 रोज़ हमने बनाई हैं। फर्स्ट 2 रोज़ बन गई है ऑफ द रो टेबल। अच्छा, एक इसके अंदर ये कंडीशन है कि अगर ये देखिए 10 है, दिस इज़ 10 30 और यहाँ पे 0 है, तो ये कंप्लीट जितने भी टर्म्स हैं ये 10 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको 10 पे डिवाइड कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि आपने होल नंबर के ऊपर इसको डिवाइड करना होगा और देट मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, बट पॉजिटिव होगा और होल नंबर होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा, इशारिया में नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट वहाँ पे नहीं होगा। तो इसी को 10 पे डिवाइड कर दे, 10 को 10 पे डिवाइड कर दे 1 आएगा, 1030 को 10 पे डिवाइड कर दे 103 आएगा। अब ये डिवीज़न हमने की होगी, डिवीज़न इसलिए की ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो और इसका जो नेट इफ़ेक्ट होगा सिस्टम के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फ़र्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, सिस्टम वही का वही रहेगा। 9 अब 2 रोज़ हमारे पास आ गए हैं, एक ये रो है एंड सेकंड दिस वन। तो S1 के लिए फर्स्ट एलिमेंट, S1 रो के लिए फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए पहला कॉलम ये कंसीडर कर दें,
विच इज़ ओवर हेयर, और सेकेंड कॉलम ये कंसीडर कर दें विच इज़ ओवर हेयर। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और जस्ट अबव इट क्या है, 1 है, तो इसी 1 के ऊपर इसको डिवाइड कर दिया गया है। सो दैट बिकम्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द S1 रो। अब इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने चंद कैलकुलेशन की है। सो विच इज़ ओवर हेयर 103 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दे जो कि ये है, माइनस 31 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दे विच इज़ ओवर हेयर, इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया है और 1 पे डिवाइड कर दिया गया। तो इसी ये कैलकुलेशन अगर हम बना दें, सो दैट रिजल्ट्स इन -72। सो दिस बिकम्स -72। तो S1 की फर्स्ट एलिमेंट हमने फाइंड कर दी। नाउ फॉर फाइंडिंग द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द S1 रो, पहला कॉलम ये कंसीडर करना है विच इज़ ओवर हेयर, ये है। अब चूंकि ये हमने कंसीडर किया था यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो यहाँ पुट करेंगे। ये पुट किया नेगेटिव साइन, और उसी 1 के ऊपर इसी को भी डिवाइड कर दिया गया है। सो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, 0 होगा। अब थर्ड एलिमेंट के लिए, फॉर कंसीडरिंग थर्ड एलिमेंट ऑफ द S1 रो, पहला कॉलम तो ये कंसीडर करें विच इज़ ओवर हेयर, इसको हमने यहाँ कंसीडर किया था, इसको हमने यहाँ कंसीडर किया था, तो यहाँ पे भी 0 0 होंगे और उसी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और इसी 1 के ऊपर सबको डिवाइड करना होगा। तो इसका रिज़ल्ट भी 0 आ रहा है। तो S1 रो हमने फाइंड कर दी है। अब आते हैं S0 रो की तरफ। तो S0 रो की तरफ अगर हम देखें तो इससे अबव जो कॉलम होगा वो ये है, दैट इज़ 1 एंड -72। तो यहाँ पुट कर दे, यहाँ भी पुट कर दे, और यहाँ भी पुट कर। तो सब में फर्स्ट कॉलम जो होगा दैट विल बी 1 एंड -72। सेकेंड कॉलम के लिए ये कॉलम कंसीडर कर दे पुट ओवर हेयर, और इसी को अच्छा, अब इसको किस पे डिवाइड करना है, जो अबाउ दिस है S0 के ऊपर जो है दैट इज़ -72, तो सबको डिवाइड करना है -72 के ऊपर। नाउ दोबारा देखें, इसका जो फर्स्ट कॉलम होगा ये होगा, सेकेंड कॉलम ये होगा, डिवाइड करेंगे -72 के ऊपर और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम फाइंड करेंगे विल बी गेटिंग 103। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट कॉलम है वो तो वही रहेगा, इसको हमने कंसीडर किया था यहाँ पर, तो अब कौन सा कंसीडर करेंगे, दिस वन। सो 0 0 यहाँ पे पुट करेंगे, उसी -72 के ऊपर इसी को भी डिवाइड करेंगे और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके विल बी गेटिंग 0। थर्ड एलिमेंट को फाइंड करने के लिए उसी तरह ये 1 और -72 ये यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 0 0 होगा वो यहाँ पुट करेंगे, और -72 के ऊपर इसी को भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव विल बी गेटिंग 0। तो इस तरह इस प्रोसेस के थ्रू हम रोज टेबल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब नीट टेबल जो होगा, रोज नीट जो ट्रूथ टेबल होगा विल बी हैविंग लाइक दिस। तो S क्यूब से स्टार्ट लिया था, S² S1 और S0। तो ये डिफरेंट रोज है, ये S क्यूब की रो है, दिस इज S² रो, दिस इज S1 रो, दिस इज S0 रो। अब ट्रूथ टेबल हमने बनाया है। नाउ वी विल बी गोइंग टू इंटरप्रेट दिस टेबल। अब इस टेबल की हमने ऑपरेशंस करनी है। तो ऑपरेशन करने के लिए क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है कि पुल लोकेशंस क्या है, लेफ़्ट हाफ प्लेन के अंदर है या राइट हाफ
प्लेन के अंदर है या जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर है। तो इसको फाइंड करने के लिए एक रूल है, वो रूल क्या है कि नंबर ऑफ रूट्स आर पोल्स इन राइट हाफ प्लेन। राइट हाफ प्लेन के अंदर जो पोल्स होंगे that would be equal to number of sign changes in the first column of the truth table। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ट्रूथ टेबल का ये फर्स्ट कॉलम है। नाउ फर्स्ट कॉलम तो हमने जान लिया, व्हाट इज मीन बाय साइन चेंजेस। साइन चेंजेस का क्या मतलब है, साइन चेंजेस का मतलब ये है कि दिस वन इज पॉजिटिव। अब इस वन से इस वन की तरफ आएंगे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ये वन भी पॉजिटिव है, सो दोनों पॉजिटिव है, देयर इज नो साइन चेंज। अब आएंगे इस वन से इस 72 की तरफ, -72 की तरफ। सो इस वन से जब हम -72 की तरफ आ रहे हैं तो +1 से माइनस की तरफ गए हैं, सो देट इज़ वन साइन चेंज। यहाँ पे एक साइन चेंज आ गया। अब -72 से जाएंगे 103 की तरफ, तो 103 ये पॉजिटिव है और -72 नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी एक साइन चेंज आ गया हमारे पास। टोटल कितने साइन चेंजेस हैं, 2। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब हम +1 से +1 की तरफ आते हैं तो नो साइन चेंज, +1 से -72 की तरफ आते हैं तो प्लस से माइनस की तरफ गए हैं तो सिंगल साइन चेंज। अब -72 से +103 की तरफ, अब ये भी साइन चेंज, तो टोटल 2 साइन चेंजेस। तो अब साइन चेंजेस के लिए हमने क्या कहा था कि अगर ये साइन चेंजेस हों तो साइन चेंजेस का क्या मतलब है, साइन चेंजेस का मतलब ये है कि पोल्स जो है इतने पोल्स राइट हाफ प्लेन के अंदर है। यहाँ पे 2 साइन चेंजेस हैं, तो राइट हाफ प्लेन पोल्स कितने होंगे, 2। तो नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हाफ प्लेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस विच इज़ 2। कोई भी एक पोल राइट हाफ प्लेन में आ गया तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। अब ये अनस्टेबल क्यों बन रहा है, चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि लेट अस सपोज अगर g(s) 1/s+5 है और r(s) 1/s है, तो इसी का अगर हम आउटपुट फाइंड कर दें तो c(t) विल बी इक्वल टू 1 - e⁵ अगर यहाँ इस g(s) के अंदर 1/, ये अगर 1/s+5 होता तो यहाँ पे 1 - e⁻⁻5t होता, लेकिन यहाँ पे g(s) के अंदर क्या है, 1/s-5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, e⁻⁵t आएगा। अब अगर t की वैल्यू हम 0 रखें तो e⁻�0 मीन्स 1, अगर t की वैल्यू 1 रखें e⁻⁵, अगर t की वैल्यू 2 रखें e⁻10, अगर 3 रखें e⁻15, तो इसका मतलब ये है कि एज टाइम गोज़ टू इन्फिनिटी e⁻t गोज़ टू इन्फिनिटी। और हमें पता है कि ये क्या है, नेचुरल रिस्पांस है। जब नेचुरल रिस्पांस इन्फिनिटी तक जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम अनस्टेबल है और ये कभी भी 0 पे नहीं पहुंचेगा। जब नेचुरल रिस्पांस 0 नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, so this means कि the system is unstable। तो this is the interpretation of the truth table। अगर let us suppose यहाँ पे जितने भी वैल्यूज होते ये सारे पॉजिटिव है तो there would be no sign change। अब कोई साइन चेंज नहीं है तो जितने भी पोल्स होंगे वो लेफ़्ट हाफ प्लेन में होंगे और सिस्टम स्टेबल होगा। चूँकि यहाँ पे 2 साइन चेंजेस है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 साइन चेंजेस है, तो जो 2 पोल होंगे वो राइट हाफ प्लेन में होंगे और एक पोल रहता है वो लेफ़्ट हाफ प्लेन में होगा। तो 2 पोल राइट हाफ प्लेन में और एक पोल लेफ़्ट हाफ प्लेन में, चूँकि राइट हाफ प्लेन के अंदर पोल एग्जिस्ट करते हैं, सो इसलिए ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। Now skill assessment exercise 6.1, make
truth table and tell how many roots of the following polynomial are in the right half plane and the left half plane। तो यहाँ पे this is the denominator of the closed loop transfer function, denominator of the closed loop transfer function, denominator of the closed loop transfer function हमें क्या दे रहा है, पोल्स दे रहा है। तो इन पोल्स की लोकेशन फाइंड करनी है यूजिंग दी यूरर्स क्राइटेरिया। ट्रूथ टेबल बनानी है और ट्रूथ टेबल बनाने के बाद नंबर ऑफ साइन चेंजेस आपने नोट करने हैं। तो जितने साइन चेंजेस होंगे उतने ही राइट हाफ प्लेन के अंदर पोल होंगे और बाकी पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। तो ये बात याद रखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो आर्डर होगा, अब इसका आर्डर क्या है, आर्डर इसका 7 है। जो हाईएस्ट पावर होगा दैट वुड बी द आर्डर ऑफ दिस ट्रांसफ़र फंक्शन, सॉरी डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन, यानी जो पॉलिनोमियल होगा। तो इस पॉलिनोमियल का जो आर्डर है दैट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ एस विच इज़ 7। तो यहाँ पे 7 पोल्स होंगे। अगर लेट सपोज 4 साइन चेंजेस है तो 4 पोल्स राइट हाफ प्लेन में होंगे और बाकी 3 लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। इसको ऊपर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे हम स्पेशल केसेस की तरफ।